Good morning to everybody. सुप्रभात सभी को. Today we have reached the third part of our chapter, that is lifelines of national economy. In the first two parts, we have intensively discussed about the various means and modes of transportation, their advantages and disadvantages. Today we will be discussing about communication, international trade and tourism. So first of all, let us understand what is communication. संचार या communication को जान लेते हैं पहले क्या होता है. The exchange of information, ideas and knowledge from one person to another is known as communication. किसी भी सूचना या जानकारी का आदान प्रदान communication या संचार कहलाता है. There are various means of communication such as internet, social media, mass media like television, radio, letters, phone calls, etc. तो बहुत सारे माध्यम संचार के communication के हमारे पास आज मौजूद हैं. We are all aware about those mediums. One of the means of communication is the Indian Postal Services, which provide services like sending letters, envelopes, greeting cards to different people. So when you talk about the Indian Postal Network, it is the largest postal network in the world. It has classified its different mails into two categories. देखिए जो mails इन्होंने इनके पास आती हैं या जो डाक इनके पास आती हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इसको इन्होंने दो भागों में बांटा है. सबसे पहले है फर्स्ट क्लास मेल विच इंक्लूड्स कार्ड्स एंड एनवलप्स. जो फर्स्ट क्लास मेल है उसमें कार्ड्स और एनवलप्स आते हैं. इन द सेकेंड क्लास मेल्स इट इज़ इंक्लूडेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. बुक्स, न्यूज़पेपर्स और जो पीरियोडिकल्स हैं वो सेकंड क्लास मेल में आते हैं. अक्सर जो फर्स्ट क्लास मेल है उसको एयर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और जो सेकंड क्लास मेल्स हैं उसको रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. Now if you talk about communication, there are some important terms which we need to discuss and which are there in your book. First one is STD, subscriber trunk dialing. Although there is no use or no known terminology now about the STD facility for calling, earlier it was very important. Now because roaming has been made free on all the networks, so there is no use of STD. Earlier there were local calls, means calls within the state, and if you want to call to a city in another state, then STD facility was available to the people. So although it is not important today, but we all must know the full form. Another is mass communication, as we have already studied in our previous classes, that the communication or the means of communication which helps us to communicate to a large group of people at the same time, that is known as mass communication or means of mass communication. जब हम एक ही समय में एक बहुत बड़े लोगों के समूह के साथ अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं या कोई जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे किसी भी माध्यम को मास कम्युनिकेशन का मीडियम कहते हैं या मास कम्युनिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया एटसेट्रा. And today there is YouTube and many other platforms which are available for people to convey their information, knowledge और discussions. So communication के कुछ important facts जान लेते हैं. जैसे आपको एक इमेज में दिख रहा होगा AIR, ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं. This is a government radio channel which the government agency runs. So here we all must know that India is the largest producer of feature films, means short films based on some social issue or any of the issues or any topics which are shorter in duration are known as feature films. अब हमें ये भी जानना चाहिए कि भारत में जितनी भी मूवीज़ बनती हैं और या जितनी मूवीज़ दिखाई जाती हैं, चाहे भारत में बनने वाली या बाहर बनने वाली, इंडियन थिएटर्स में, इंडियन टेलीविज़न पर जहाँ भी कई मूवीज़ दिखाई जाती हैं, वहाँ पे CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो अथॉरिटी है जो सभी मूवीज़ जो हमारे देश में ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, टेलीकास्ट हो रही हैं, उनको अप्रूवल देती है, उनको सर्टिफिकेट देती है, उनकी सर्टिफिकेशन का काम करती है. द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स विच आर प्रिंटेड इन इंडिया आर प्रिंटेड इन द हिंदी लैंग्वेज. हमारे देश में जितने भी न्यूज़पेपर छपते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा
हिंदी भाषी जो न्यूज़पेपर्स हैं या हिंदी भाषा में जो न्यूज़पेपर छप रहे हैं जिनको हिंदी भाषी लोग पढ़ते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। द नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टर दैट इज AIR, ऑल इंडिया रेडियो, इज ऑल्सो नोन एज आकाशवाणी। अब हमने कम्युनिकेशन की, संचार की बात कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर ली, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड की। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। जब सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इट जनरली takes place through sea routes, land routes or air routes. India has rich trade relations with all major countries and trading blocks of the world. कुछ देशों ने ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जैसे G20, G7, ठीक है, जैसे सार्क कंट्रीज, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज, जैसे शंघाई कॉरपोरेशन कंट्रीज। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स हर एक ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ और अलग अलग इंडिविजुअल देशों के साथ, इन सभी समूहों और सभी इंडिविजुअल देशों के साथ भारत के बहुत ही अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। वी हैव वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड एट प्रेजेंट ऑल्सो। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको शॉर्ट में BOT भी कहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। द सेंडिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्रीज इज नोन एज एक्सपोर्ट। सबसे पहले तो जब हम अपने यहाँ से कोई गुड्स बाहर भेजते हैं उनको उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। एंड द रिसीविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इज नोन एज इम्पोर्ट्स। जो हमारे देश में सामान हम किसी बाहर के देश से मंगाते हैं उसको इम्पोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं निर्यात और इम्पोर्ट को हिंदी में कहते हैं आयात। बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है व्यापार का, उस डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब इसमें फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी देश के लिए कब होगा? जब फॉर एग्जांपल भारत है, मान लेते हैं हमारा जो ट्रेड है, जो उसकी जो टोटल वैल्यू है, जो फॉरेन ट्रेड है, अगर उसमें एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 100 करोड़ है और इंपोर्ट्स की वैल्यू 90 करोड़ है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो 10 करोड़ का अंतर है, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, जब किसी देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होते हैं तब वहाँ पे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। और जब किसी देश के इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं उसके मुकाबले, तो फिर वहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में फर्दर हम अपने देश की बात करते हैं। सो इंडिया एट प्रेजेंट हैज़ अ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं बजाय कि उसके मुकाबले की हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं। So, India mostly exports gems, jewelry, chemicals, agricultural products, etc. The commodities imported include petroleum and crude oil। देखिए, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल पे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो धीरे धीरे हमारी सरकार इसकी जो डिपेंडेंसी है हमारे देश की क्रूड ऑयल पे और जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उससे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर धीरे धीरे शिफ्ट करने का प्रयास कर रही है। अब हमने इंटरनेशनल ट्रेड जान लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ये जान लिया। हम आखिरी में जानते हैं टूरिज्म एज ट्रेड। कैसे टूरिज्म एक व्यापार की तरह काम कर सकता है और कर रहा है अलग अलग देशों में, और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, उसका विकास करने में, नई नौकरियां जनरेट करने में मदद कर सकता है। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स। और इस तरफ हमारी पूर्ववर्ती सरकार और जो वर्तमान में सरकार है उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं that our tourism develops at a very fast speed and we have a lot of potential because we are an ancient civilization and we have many things to showcase to the other people who come to our country from foreign countries. More than 15 million people are directly engaged in tourism in India। ठीक है, तो लगभग 1.5 करोड़ लोग सीधा टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, पर्यटन से जुड़े हुए हैं, और 45 मिलियन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इट इज़ अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर आवर स्टेट उत्तराखंड इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज इंडस्ट्री। सो
tourism can play a very big role in the development of the nation. Let's see how can tourism play a big role in the development of an economy. First of all, tourism contributes to the economy in many ways, like tourism promotes the development of infrastructure such as roads, hotels, restaurants, etc. तो टूरिज्म जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही होटल्स खुलते हैं, नए रेस्टोरेंट खुलते हैं, ठीक है, और भी जो लेजर एक्टिविटीज़ हैं, नए मॉल्स खुलते हैं. तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था जो है उसमें डिमांड बढ़ती है और वो आगे जाती है. टूरिज्म ब्रिंग्स द प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज नीडेड टू गेट इंपोर्ट्स. टूरिज्म जो है वो फॉरेन एक्सचेंज भी, हमारे देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनको बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट आएंगे दे विल गिव अस फॉरेन एक्सचेंज एंड इन रिटर्न दे विल गेट द मनी to spend in our country, and from that foreign exchange we will be able to easily import the things which we want. जो हम import करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं. तो इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था को विकास के अन्य रास्ते खुलते हैं. Tourism helps in generating employment in different fields and forms. टूरिज्म से नए नए अवसर किसके, रोजगार के खुलते हैं, क्योंकि टूरिज्म से संबंधित बहुत सारे लोग जैसे ट्रांसपोर्टर्स, जैसे होटेलियर्स, ठीक है, जैसे और भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग, गाइड्स, उनको एक नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका मिलता है. टूरिज्म हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑल्सो. तो टूरिज्म से एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी बनता है, क्योंकि जैसे जैसे टूरिज्म आएगा, जैसे नया पैसा आएगा इकोनॉमी के अंदर, तो फिर उससे संबंधित जो लोग हैं वो और अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे और जो मौजूदा सुविधाएं हैं उनको इंप्रूव करेंगे, सो दैट मोर एंड मोर टूरिस्ट गेट अट्रैक्टेड टू द कंट्री एंड कम टू द कंट्री. सो अनदर इज टूरिज्म हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड द स्प्रेड ऑफ आवर कल्चर. तो हमारे कल्चर को स्प्रेड करने में, हमारे आइडियाज को स्प्रेड करने में भी बहुत मदद करता है टूरिज्म. और आजकल के ज़माने में मेडिकल टूरिज्म एक इतनी इंपॉर्टेंट टर्म बन चुका है, क्योंकि इंडिया ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं मेडिकल की लो कॉस्ट पे, कि अमेरिका के लोग भी यहाँ पर, हमारे यहाँ पे इलाज कराने आ रहे हैं आज के समय में, so that they get a high standard, high quality of medical treatment at a very low cost. तो मेडिकल टूरिज्म भी अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ाने में मदद कर रहा है. तो इस प्रकार से व्यापार जो है वो अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने में, डेवलप होने में मदद करता है. So let us come to the assignment part. Here we have question number first, what is mass media? Question number 2, what is included in the first and second class mail? Question number 3, explain international trade and balance of trade. Question number 4, explain how tourism helps in boosting economic development of a country. And question number 5, name the institution which certify movies in India. I hope you understood the topics which we have discussed. If the video was informative, please like it, share it with your friends so that they can also be benefited from the information. Give your valuable suggestions through your comments, and do not forget to subscribe to my channel for latest informative videos. Thank you and have a nice day.